નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું લોકમંચમાં. લોકમંચમાં આપ જાણો છો કે અલગ અલગ વિષય પર આપણે ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ અને તજજ્ઞોને પેનલમાં બોલાવીને એ વિશે ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ. ખાસ તો ગુજરાતનું રાજકારણ હોય, ભારતની કોઈ ભારતીય રાજકારણ હોય, કોઈ સામાજિક ઘટના હોય કે કોઈ પણ ધાર્મિક ઘટના હોય તો આપણે ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ. પરંતુ આજે વિદેશની ધરતીની ચર્ચા કરવી છે, કારણ કે વિદેશી ધરતી પર હિન્દુ મંદિરો છે, નિશાના પર છે. આપ સમજી ગયા હશો કે જે પ્રમાણે કેનેડા બાદ હવે અમેરિકાના મંદિર પર જે હુમલો થયો છે અને હિન્દુ મંદિરો પર હુમલાઓની ઘટના વધી છે, ચિંતાજનક બાબત છે. લોકમંચ કાર્યક્રમમાં એને જ આપણે આજે ચર્ચા કરીશું, કારણ કે અગાઉ પણ તમે જુઓ કે ખાલિસ્તાની જે સમર્થકો છે એમણે મંદિર પર હુમલા કર્યા છે, હિન્દુ મંદિરો પર હુમલા કર્યા છે અને હવે સેક્રામેન્ટોમાં બાપ્સ મંદિરમાં તોડફોડ કરવામાં આવી છે. સાથે જ અમેરિકાના જે કેલિફોર્નિયા છે એમાં હિન્દુ ધર્મના જે ધર્મસ્થાનો છે, મંદિર છે, તેની પર હુમલો કરવામાં આવ્યો છે અને અમેરિકામાં જે હિન્દુ સમુદાય છે એ ક્યાંક ભય અને અસુરક્ષાની લાગણી અનુભવી રહ્યા છે. નફરત દર્શાવતા કેટલાક વાંધાજનક સૂત્રો પણ આ દરમિયાન લખવામાં આવ્યા છે અને કેલિફોર્નિયાના બાપ્સ મંદિરની દિવાલો પર હિન્દુઓ ગો બેક, હિન્દુઓ પાછા જાઓ, આવા સૂત્રો લખવામાં આવ્યા છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વિશે પણ તેમાં ટિપ્પણીઓ કરવામાં આવી છે. કેટલાક વાંધાજનક શબ્દો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી માટે પણ લખવામાં આવ્યા છે અને એક જ મહિનામાં અમેરિકામાં આ સ્વામિનારાયણ મંદિર પર તોડફોડની આ બીજી ઘટના છે. સવાલ એ થઈ રહ્યો છે કે વિદેશી ધરતી પર હિન્દુ મંદિરોનો આટલો વિરોધ શા માટે છે અને હિન્દુ અમેરિકનો વિરુદ્ધ આ પ્રકારની નફરત અને બર્બરતા પાછળનું કારણ શું? આ જ મુદ્દે ચર્ચા કરવા માટે પેનલમાં જાણીતા રાજકીય વિશ્લેષક જયવંત પંડ્યા મારી સાથે છે. જયવંતજી, સ્વાગત છે આપનું. નમસ્તે. સાથે જ મહામંત્રી ગુજરાત પ્રદેશ વીએચપી ના અશોક રાવલ મારી સાથે છે. અશોકજી, આપનું પણ સ્વાગત છે. જય શ્રી રામ. અને હિન્દુ સમર્થક એવા યોગી ભટ્ટ મારી સાથે જોડાયા છે. યોગીજી, આપનું સ્વાગત. હર હર મહાદેવ. જી. અને હિન્દુ અગ્રણી યુએસએ લોસ એન્જલસ થી સીધા જ આપણી સાથે જોડાયા છે. બાય પ્રોફેશનલ ડેન્ટિસ્ટ છે એવા ડોક્ટર અમિત દેસાઈ મારી સાથે છે. અમિતજી, આપનું પણ સ્વાગત છે. નમસ્કાર દિલીપભાઈ. જી. અમિતજી, શરૂઆત આપનાથી કરીશું, કારણ કે જે પ્રમાણે યોગી ભટ્ટ, શું માનશો કે જે પ્રમાણે વાત કરી આપણા ત્રણેય પેનલિસ્ટોએ કે હિન્દુ સંસ્કૃતિ, હિન્દુ ધર્મ, એનું કદ વધી રહ્યું છે અને હિન્દુઓ તો સર્વ સમાવેશી છે, તમામ ધર્મને આવકારો આપે છે, તમામને માન, આદર, સત્કાર તમામ ધર્મોનું કરે છે. શું લાગે છે આ વધતું કદ હિન્દુત્વનું કે હિન્દુ ધર્મનું એ ક્યાંક લોકોને નડી રહ્યું છે? ક્યાંક વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જે વિશ્વગુરુ તરફ આગળ વધી રહ્યા છે, અલગ અલગ દેશોમાં જે પ્રમાણે એમને માન સન્માન મળે છે, ભારત આર્થિક સત્તા બનવા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે, આ બધા કારણો હોઈ શકે કે જેને લઈને મંદિરોને હવે ટાર્ગેટ કરવામાં આવે છે, હિન્દુઓને ટાર્ગેટ કરવામાં આવે છે? दिलीप जी, मैं हिंदी में बोलूंगा, जिससे हो सकता है कि शायद आपके काफी ऐसे दर्शक होंगे जो शायद प्योर गुजराती नहीं समझ पाएंगे, तो हिंदी में बोलना थोड़ा ठीक रहेगा। जी, बिल्कुल। पैनलिस्ट के जितने भी मित्र हैं उनकी कुछ कुछ बातों से मैं आंशिक रूप से सहमत हूं, लेकिन पूर्णतः सहमत नहीं हूं। शायद एक विषय ऐसा है जो किसी ने उसको टच नहीं किया है। बेसिकली देखिए, ये जो हिंदू मंदिर पे, बैप्स के मंदिर पे हमला हुआ है, ये पहला नहीं है अमेरिका में। इसके पहले एक हफ्ते पहले भी न्यूयॉर्क में मेलविले में भी एक हमला हो चुका है। पिछले साल एडमॉन्टन कनाडा में भी हमला हो चुका है। जहां तक हम बात करते हैं ये डेवलप्ड नेशंस की भी, ऐसा वहां के लोग कैसे करते हैं? एक हमारे जो विश्व हिंदू परिषद के जो मित्र हैं उन्होंने कुछ बताया कि सब जगह पे यहाँ मुसलमानों का ये प्रॉब्लम है। ये अमेरिका में नहीं है वो चीज। अमेरिका में जो हमला हुआ है उसकी अभी तहकीकात चल रही है, उसका इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है, बट 110% दीज आर दी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन पीपल हु हैव डन दिस अटैक, दैट इज 100% श्योर। वंस द इन्वेस्टिगेशन विल कम आउट, यू विल नो अबाउट इट। प्रॉब्लम क्या है कि देखिए, अमेरिका का प्रॉब्लम अलग है, दूसरे देशों का प्रॉब्लम अलग है। अगर बांग्लादेश के जो दंगे हुए उसमें भी हिंदुओं को और उनके मंदिरों को टारगेट बनाया गया, उनका विषय वस्तु अलग है। तो हर एक चीज को एक ही नजरिए से देखना ठीक नहीं होगा। अमेरिका में प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका अभी काफी बड़े कर्ज के बोझ के नीचे दबा हुआ है और इंटरनेशनल भी इकोनॉमी अभी मेल्टडाउन स्टेज में है। तो यूएस में ज्यादातर काफी लोगों के पास में नौकरियां नहीं है, ठीक है, वहां लोग सरकारी खैरात पे अपना जिंदगी जी रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हिंदुओं के जो परिवार हैं वहां पे, जैसे अमेरिका वाले हमारे जो मित्र हैं अभी पैनल में बैठे हुए, उन्होंने भी चीज सही बताई कि हिंदुओं की पॉपुलेशन जो है सिर्फ 1% है, लेकिन उनका जो योगदान है, उनका अमेरिका के विकास में, उनकी जीडीपी में जो योगदान है वो तकरीबन तकरीबन 5 से 6% है।
सो ये चीज को देखते हुए एक्चुअली ये चीज आप पता लगना चाहिए कि भाई इंडिया के जितने भी लोग हैं, चाहे वो साउथ इंडिया के हों, गुजरात के हों, कहीं के भी हों, बेसिकली उनके लिए सब इंडियन एक समान है। वो नहीं जानते कि इंडिया कितना बड़ा है। तो वो जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन लोग हैं, जिनके बच्चों की नौकरियां नहीं है, वो पढ़ते नहीं है, कॉलेज जाते नहीं है, जबकि इंडियन लोग और चाइनीज, ये दो कम्युनिटी ऐसी है जो बहुत ही एकेडमिक्स में आगे रहती है। हिंदुस्तान के लोग हैं जो बच्चे हैं, वो काफी अच्छी अच्छी पोजीशंस में नौकरियां ले लेते हैं, क्योंकि वो अच्छे पढ़ते हैं तो उनको नौकरी मिल जाती है इजीली। अब जो लोग वहां हर वीकेंड पे पूरा जो भी कमाई करते हैं खर्चा कर लेते हैं, कुछ बचाते नहीं है, सेविंग नहीं करते, उनकी लाइफ जो है वो मिजरेबल है आज की डेट में अमेरिका में। तो ऐसे लोगों को ऑर्थोडॉक्स चर्च के अंदर, बट नेचुरल है कि हिंदुइज्म के सामने उनके मन में भी वही जहर भरा जाता है कि हिंदू जब तक यहाँ है तब तक आपको आपकी नौकरियां नहीं मिलेंगी, आपका प्रोग्रेस नहीं होगा। तो इस तरह की जो मस्जिदों में तकरीरें दूसरे देशों में या तो हिंदुस्तान में भी होती हैं, इस तरह की कुछ बातें चर्चों, ऑर्थोडॉक्स चर्च में भी होती हैं। और ये जो हमला हुआ है, यानी हमला क्या हुआ है कि इन्होंने दरवाजों के ऊपर जाके ग्राफिटी से लिख दिया कि भाई हिंदू गो बैक, या तो आपने बताया कि नरेंद्र मोदी के बारे में लिख लिया, कुछ लिख लिया। तो इनको ये लगता है कि जब तक ये हिंदुस्तानी ये सरजमीन पे हैं अमेरिका की, तब तक हमारे लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी, हम यहाँ अच्छी तरह से हम कहीं ना कहीं चांस नहीं मिलेगा। तो ये चीज को लेते हुए एक तो एक हमला हो सकता है। दूसरे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि आप उसको बिल्कुल एक हिंदू धर्म का जो सर्वसमावेशक जो एक हमेशा से नीति रही है, हिंदू मानता है कि कण कण में भगवान है। तो हिंदू ज्यादातर लड़ाई झगड़े में बिलीव नहीं करते, वो सौहार्द से रहने में बिलीव करते हैं। जबकि दूसरे कितनी मान्यता हो, दूसरे धर्म तो है ही नहीं, सनातन एक ही धर्म है दुनिया में, लेकिन दूसरे जितने भी मान्यता हैं उन सब में एक ही ईश्वर को माना गया है। क्रिश्चियनिटी है तो बोले कि भाई जीसस है वो भगवान का बेटा है। अगर इस्लाम है तो भाई जो मोहम्मद है वो उनका पैगंबर है। उसके अलावा जितने लोग बोले दूसरे में मानते हो वो हमारे लिए बेकार है, हराम है। ठीक है। सो ये जो सोच है, एकेश्वरवाद वाली सोच है, वो सोच के चलते हुए ऑर्थोडॉक्स चर्च हैं या तो रेडिकल इस्लाम है, उस सब में हिंदुओं के प्रति, क्योंकि हिंदू आज दुनिया में 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू लोग हैं, वो एक बड़ी पॉपुलेशन है, कम नहीं है। तो उनको जहां जहां भी उनकी मेहनत से, अपनी अकल से, अपने हार्ड वर्किंग से वो जहां भी आगे जाते हैं, तो दूसरे इस तरह के ऑर्थोडॉक्स लोग या रेडिकल लोगों को परेशानी होती ही है। तो वो पहला निशाना बनाते हैं उनके आस्था के स्थानों को, आपके मंदिरों को। तो ये चीजें सभी जगह पे हो रही है, कनाडा में भी लास्ट ईयर अच्छा। हुआ था। मतलब तो आप लोगों के अलग अलग